हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਥ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਚੈਪਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਦੈਨ ਕੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੈਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ XYZ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Z ਹੈ ਉਸਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡੈਥ ਅਨਪਲੈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਡੈਥ ਮੇ ਕਮ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਈਅਰ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਪਲੈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਨ ਦੀ ਡੈਥ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਕਮ ਇਨਟੂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਕੀਸਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਕੀਸਡ ਪਾਰਟਨਰ। ਡਿਕੀਸਡ ਪਾਰਟਨਰ, ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਿਕੀਸਡ ਪਾਰਟਨਰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਲੀਗਲ ਹਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਕੀਸਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਲੀਗਲ ਹਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਲੀਗਲ ਹਾਇਰਸ ਔਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡ। ਜੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਨ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬ੍ਰਦਰ, ਵਾਈਫ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। Legal hire or representatives, executors of the deceased partners are entitled to get the claim as per the provisions of partnership deed। ਜਿੰਨਾ ਵੀ claim ਉਹ ਲਊਗਾ ਲੀਗਲ ਹਾਇਰ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਜੋ ਡਿਕੀਸਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਲੇਮ ਲੀਗਲ ਹਾਇਰ ਜਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਵਿਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡੈਥ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਡਿਕੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼ ਐਂਟਾਈਟਲ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ, ਐਕੂਮੂਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਜੋ ਡਿਕੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਊਗਾ, ਐਕੂਮੂਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਊਗਾ। ਐਕੂਮੂਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਨਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਜੋ ਡਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਰਿਆ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸਨੂੰ ਡਿਕੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਕੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਲੀਗਲ ਹਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਆਲ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦ ਡਿਕੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜੋ ਡਿਕੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਸਿਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦੀ ਡੈਥ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ, ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ,
जो इन्वेस्टमेंट है अगर टेकन बाय एनी पार्टनर, ये सारियां एडजस्टमेंट्स रिटायरमेंट चैप्टर के रिलेटेड नाल दियां ही है, बिल्कुल उस तरीके नाल ही डैथ दे विच आपां कैलकुलेट करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स आपां हुण पार्टनर शेयर्स इन प्रॉफिट, डकैज़ पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट आपां कैलकुलेट करांगे। ये आपां इस 3 मैथड्स भी पढ़ांगे, लेकिन पहलां आपां जर्नल एंट्रीज देख लई की हुंदा है शेयर इन डकैज़ पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे डकैज़ पार्टनर, दे कैन क्लेम शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ। जो डकैज़ पार्टनर दे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो की डिमांड करते हैं, वो कहते हैं लास्ट बैलेंस शीट तो लैके डेट ऑफ डेथ उदों तक जदों तक उस जो परसन है जिस जो पार्टनर है उसकी डेथ हुई है उत्थों तक का कितना भी शेयर बनता है वह दिता जाए। सपोज अ पार्टनर इज डाइड ऑन 30 जून 2019, 30 जून 2019 एक पार्टनर डाइड होया, ठीक है। अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च। सो स्टूडेंट्स देखो इत्थे की है अपने को 1 अप्रैल 2019 टू लैके 31 मार्च 2020 तक 1 साल कंप्लीट होंदा है। हूँ जो पार्टनर है ये पार्टनर है वो कदों डाइड हो गया 30 जून 2019। सो 1 अप्रैल मतलब 31 मार्च 2019 जो पिछला साल है 31 मार्च 2019 तक अकाउंट्स बने होंगे, ठीक है। उसनों जो डकैज़ पार्टनर है इत्थों तक का प्रॉफिट तो उसनों मिलिया हुआ है, 31 मार्च 2019 तक का प्रॉफिट मिलिया हुआ है। इसलिए क्या कि फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब इत्थे तक का प्रॉफिट उसनों मिलिया हुआ। हुण कितना नहीं मिलिया 1 अप्रैल 2019 टू लैके 30 जून 2019 तक, जिन्ना 1 अप्रैल तो लैके 30 जून तक का प्रॉफिट बनता है वह की है किसनों दिता जाए डकैज़ पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव नूं। डिमांड करनी कि इन्ना जिन्ना शेयर ऑफ प्रॉफिट इन्ने महीनों का बनता है, ठीक है, वो की है दिता जाए अप्रैल मई जून 3 महीनों का 3 मंथ्स का जिन्ना भी प्रॉफिट, क्योंकि स्टूडेंट्स 3 मंथ का जो डकैज़ पार्टनर है ये पार्टनर ने अपन सर्विसिज दित्ती हैगियां, सो उसके अकॉर्डिंग उसनों मिलना चाहिए 3 मंथ का प्रॉफिट। इसलिए जो डकैज़ पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो डिमांड करनगे 3 मंथ्स का प्रॉफिट, अगर लॉस है वो भी, ठीक है ना। ये किवें कैलकुलेट करना है वो आप थोड़े टाइम तक करते हैं। पहला आप देखो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होंदा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। जो डकैज़ पार्टनर होगा उसके कैपिटल अकाउंट दे विच आपां शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो क्रेडिटर करना है और बैलेंस शीट दे विच एसेट साइड दे उत्ते शो होगा। जिहड़ा प्रॉफिट आपां निकालांगे शेयर ऑफ प्रॉफिट जिन्ना भी डकैज़ पार्टनर दा होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एज अ बैलेंस शीट दे विच प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दे नाल शो होगा एसेट साइड दे विच अगर प्रॉफिट है तां। अगर लॉस है वो लाइबिलिटी साइड शो होगा बैलेंस शीट दे विच। The profit and loss account is transferred in the name of profit and loss suspense account। अगर एसेट साइड है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट देना शो होगा, अगर लाइबिलिटी साइड है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट देना शो करांगे। लेकिन अगर प्रॉफिट है दैन एसेट साइड करांगे बैलेंस शीट की, अगर लॉस है उसनों लाइबिलिटी साइड करांगे। और कैपिटल अकाउंट दे विच प्रॉफिट है वो क्रेडिटर होगा और जो लॉस है वो डेबिट होगा। उस तो बाद जर्नल एंट्रीज ने, ठीक है। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है दैन उस लिए की जर्नल एंट्री बनती है, अगर शेयर ऑफ लॉस आता है दैन उसके लिए की एंट्री बनती है। मैं तुहानूं पहले ही दसता जो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आप किहड़ा अकाउंट ओपन करना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर प्रॉफिट है दैन आप एसेट साइड शो करांगे और कैपिटल अकाउंट दे विच प्रॉफिट नूं क्रेडिट करांगे। सो इसकी एंट्री की बनूगी फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डकैज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस है दैन एंट्री की बनती है डकैज़ पार्टनर मतलब जो पार्टनर की डेथ हुई है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एक ही होगी अपनी
ਐਸੈਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ। और जो ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਇਸ ਨੂੰ बैलेंस शीट ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਵੈਨ ਐਵਰ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਦੈਨ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है उस टाइम अगर न्यू रेशो भी गिवन है उस टाइम अपनी एंट्री चेंज हो जाओ। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट में डैबिट करांगे टू डिकीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, आप रेशो कटते होंगे ना गेनिंग रेशो और सैक्रीफाइसिंग रेशो, उत्थों आपां नूं पता चल जाओ गेनिंग पार्टनर्स किहड़े हैं। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स नूं आपां डैबिट कर देंगे, टू किनों करांगे डिकीज पार्टनर नूं क्रेडिट कर देंगे, जो पार्टनर जिस पार्टनर की डैथ हुई है उस पार्टनर नूं क्रेडिट कर देंगे। अगर अपना कोई पार्टनर सैक्रीफाइसिंग पार्टनर आता है उसनों भी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये सी अगर फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। अगर फॉर शेयर ऑफ लॉस है दैन ये एंट्री उल्ट हो जाएगी। डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नूं डैबिट करांगे और क्रेडिट किनों करांगे गेनिंग पार्टनर्स नूं। ठीक है, अगर कोई सैक्रीफाइसिंग पार्टनर आ जाता है अपनी जो रेशो निकालते वक्त, ठीक है, गेनिंग रेशो निकाल लेंगे आप। गेनिंग रेशो निकालते वक्त अगर कोई अपना सैक्रीफाइसिंग पार्टनर आ जाता है दैन उसनों की कर देंगे डैबिट। ये सी अपनी जर्नल एंट्रीज। कंसैप्ट है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस। डिकीज पार्टनर का शेयर प्रॉफिट और लॉस के किमें है उसनों कैलकुलेट करने लई ये अपनी जर्नल एंट्रीज हो गई। हुण इसनूं आपां 3 मैथड्स के नाल कैलकुलेट कर सकते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द डिकीज पार्टनर 3 मैथड्स के नाल कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर के प्रॉफिट नूं देखते हुए आपां जो डिकीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करांगे। एवरेज प्रॉफिट लैके लास्ट कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट लैके उस नाल कैलकुलेट करांगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल। 3 मैथड थे उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करना सीखांगे।